Good morning, children. How are you? Hope you all are fine, children, and good in your health. Yes. Children, we have completed our course, isn't it? Maths, EVS, English, almost English, isn't it? So, now we have to do what? Revision, isn't it? Your exam is also over now. Okay, so we will again start revision. Yes. Children, as you can see, I have made a picture on board. Yes, this is EVS. Take out your EVS book, children. This is EVS. I'm writing on board EVS. Okay, and we are doing revision. Yes, children, we are doing revision. All right. So please take out your EVS book, children. Plants, chapter plant. Okay. We are doing EVS and we are doing revision of chapter plant. What is the spelling of plant, children? P-L-A-N-T, plant. Yes. And in this chapter we studied about different plants. Yes. Like shrub, herbs, climber and creeper. Remember, children? Yes. We studied how plants become trees in some time, isn't it? And what else? Different types of plants. Shrubs, children. What are shrubs? Woody and bushy plants are called shrubs. जिसमें बहुत झाड़ीदार जो पौधे होते हैं, जिसमें काफ़ी पत्ते होते हैं, काफ़ी टहनियाँ होती हैं, ओके, उनको हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रन? They are known as shrub. Shrub, spelling of shrub, S-H-U-R-B, shrub, S-H-R-U-B, sorry, S-H, look, I'm writing, if you want to write, you can write. I have written here, shrubs, S-H-R-U-B-S, shrubs. Yes, children? Okay? तो झाड़ीदार पौधे, ऊडी पौधों को shrubs कहते हैं. Then herbs. What are herbs, children? I'm writing here C, spelling of herb, H-E-R-B-S, herbs. Yes, children? H-E-R-B-S, herbs. Okay. Herbs जो होते हैं, herbs are green in color and the stem is weak and they are not so woody. Okay, children, जो herbs होते हैं ना, वो पौधे पतले दुबले होते हैं और बहुत woody, बहुत झाड़ीदार नहीं होते हैं. ठीक है? ओके, चिल्ड्रन, और इनको हम लोग herbs को मेडिसिन बनाने के लिए we use herbs to make medicine, different medicine. Example, तुलसी. ओके, तुलसी का पौधा देखा है बेटा? बहुत ज़्यादा ऊडी नहीं होता, बहुत ज़्यादा झाड़ीदार नहीं होता, पतला दुबला सा होता है, isn't it? नीम, तुलसी, mint, all are herbs. Okay, children, we use them to make medicines also. And shrub का एक example देती हूँ आपने, hibiscus. Hibiscus मतलब आपने उड़हुल का पेड़ देखा है? उड़हुल के पौधे है ना, बहुत झाड़ीदार होते हैं. Then have you seen rose? Plant of rose, वो भी बहुत ऊडी होता है, चिल्ड्रन. तो वो श्रब का एग्जाम्पल है. और हर्ब का एग्जाम्पल क्या हुआ, चिल्ड्रन? नीम हो गया, तुलसी हो गया, है ना. ओके, थर्ड वन इज क्लाइंबर. सी, क्लाइंबर. Climber, spelling of climber, children, C-L-I-M-B-E-R, climber. C-L-I-M-B-E-R, climber. Climber are those plants, they need support to grow. Yes, children, they need support. Climbers जो होते हैं उनको support की ज़रूरत होती है, तभी वो बढ़ सकते हैं. Like grapevine, okay, money plant, है ना, चिल्ड्रन. इन सबको आप देखते हैं कभी आपके घरों में अगर लगा हो तो, या धागे से आप उसको सपोर्ट देते हैं बांध करके, या फिर एक स्टिक लगा देते हैं, उसको पकड़ के वो बड़ा होता है, ग्रो करता है ना. उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है खड़े होने के लिए, स्टैंड करने के लिए. दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड. ओके, Okay children, so they are climbers.
इनको हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइंबर कहते हैं. एंड टाइप ऑफ ट्री इज क्रीपर. CREEPER. Creeper. Okay, children? CREEPER. Creeper. All right? Okay, children? So, क्रीपर्स कैसे पौधे होते हैं चिल्ड्रन? ये सपोर्ट के बाद भी अगर इनको सपोर्ट दे, क्रीप ऑन ग्राउंड. ओके चिल्ड्रन, ये ग्राउंड पे ही रहते हैं. आप इनको सपोर्ट भी देंगे ना तो इनके फ्रूट्स इतने हेवी होते हैं कि इनको खड़े नहीं होने देते, स्टैंड नहीं करने देते. ओके, दे क्रीप ओनली ऑन ग्राउंड. लाइक वाटरमेलन, लाइक पंपकिन. वाटरमेलन कितना बड़ा होता है चिल्ड्रन? यस. तो उसके वेट की वजह से ये स्टैंड नहीं करते, ये ज़मीन पे ही क्रीप करते हैं. फैलने वाले ग्रास इज ऑल्सो क्रीपर, है ना चिल्ड्रन? वो घास जो है वो कैसे ज़मीन पे ही पड़ा रहता है ना, वो लंबा लंबा होके खड़ा नहीं होता ना चिल्ड्रन, कि जैसे कि मैंगो ट्री है, बनाना ट्री है, ये सब खड़े रहते हैं, स्टैंड करते हैं ना. लेकिन ये जो है क्रीपर्स जो है वो ज़मीन पे ही क्रीप करता है. ऑलराइट, सो दे आर टाइप्स ऑफ ट्री. ओके चिल्ड्रन, हमने और एक चीज़ पढ़ा था ट्री वाले चैप्टर में, उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. सी, आई हैव मेड अ पिक्चर ऑन बोर्ड. ओके, हमने पार्ट्स ऑफ ट्री पढ़ा था. यस चिल्ड्रन, तो पार्ट्स ऑफ ट्री को भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग. ट्री के कई पार्ट्स होते हैं चिल्ड्रन. जो अंडरग्राउंड होता है ना, जैसे कि ये रूट्स, दे आर अंडरग्राउंड. ये ज़मीन के नीचे होते हैं ना, इसलिए इनको रूट कहते हैं. और बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं चिल्ड्रन जो कि अबव द ग्राउंड होते हैं, दे ऑल पार्ट्स आर नोन एज शूट. SHOOT, शूट. SHOOT, शूट. ओके चिल्ड्रन, जितने पार्ट्स अबव द ग्राउंड होते हैं उनको हम लोग शूट कहते हैं, जो अंडरग्राउंड होते हैं उनको हम लोग रूट कहते हैं. ठीक है, सबको मिला के जो अबव द ग्राउंड है उन सबको मिला के शूट बनता है, और जो अंडरग्राउंड है उसको रूट कहते हैं. अब लेट्स सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट चिल्ड्रन. सी, दिस इज द फ्लावर. ओके, फ्लावर, यू कैन सी फ्लावर. ठीक है, प्लांट का एक पार्ट क्या होता है? फ्लावर होता है. ओके, सी, आई हैव रिटन. यस चिल्ड्रन, then what? they are children leaf. ये क्या है? पत्तियां हैं, और ये भी पार्ट है. ओके, ठीक है, ये भी पार्ट है ट्री के. ऑलराइट, फ्लावर कैसे बनता है चिल्ड्रन? पहले वो बड होता है, BUD, बड. ओके, जब छोटी कली होती है ना, जब फ्लावर एकदम छोटा होता है वो बड होता है, BUD, बड. और बाद में क्या बन जाता है? फ्लावर बन जाता है. ओके चिल्ड्रन, सो एक पार्ट हो गया फ्लावर. सेकेंड इज व्हाट? लीफ. यू कैन सी लीफ हियर. नाउ व्हाट आर दे चिल्ड्रन? व्हाट आर दे? दे आर branches. Okay children, branches. And spelling of branches, BRANCHES, branches. Okay children, they are branches. टहनियाँ जो होती हैं वो क्या होता है? branch होता है. Yes children. Then see the fruit. You can see a fruit. Okay, it is also part of plant. It's a fruit. Okay children, and spelling of fruit is FRUIT, fruit. All right. Okay children, so it is another part of plant. Now see, this is what? This is what children? This is stem. See, STEM. The spelling of stem is STEM, stem children. Okay, see, this is a plant, that is why we are calling it stem. ये एक छोटा पौधा है चिल्ड्रन, इसलिए हम लोग इसको स्टेम बुला रहे हैं. लेकिन जब ट्री की बात करेंगे, ट्री तो बड़ा होता है ना, बिग होता है. ओके, उसका जो ये पार्ट होता है ना चिल्ड्रन, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? ट्रंक. What is that? Trunk. TRUNK, trunk. Okay, स्पेलिंग क्या होती है ट्रंक की चिल्ड्रन? TRUNK, trunk. लेकिन ये छोटा सा पौधा है, इट्स अ प्लांट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्टेम. इसके जो तना होता है उसको हम लोग स्टेम कहते हैं. लेकिन जब ट्री की बात करेंगे जो कि बहुत बिग होता है, तो उसके तने को हम लोग स्टेम, ट्रंक कहते हैं चिल्ड्रन. TRUNK,
trunk. Okay, and this is root. Okay children, root. This is what? Root. Alright, and spelling of root is R-O-O-T, root. Understood children? These are the part of a tree: flower, leaf, branches, stem, root, fruit. Okay children? So these are the part of plant or tree, you can say. ट्री में सिर्फ एक फ़र्क आ जाता है चिल्ड्रन कि इस पतली वाली टहनी को हम लोग प्लांट में स्टेम कहते हैं, और ट्री में जब ये बड़ा और मोटा हो जाता है इसको हम लोग ट्रंक कहते हैं, TRUNK, ट्रंक. ओके, ठीक है चिल्ड्रन, बस इतना ही फ़र्क है. बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो सेम होते हैं ट्री में या फिर प्लांट में. ऑलराइट, व्हाट यू हैव टू डू फॉर रिविजन, डू चिल्ड्रन मेक व्हाट, सी, आपको ऐसा ही एक प्लांट अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना है बिना देखे हुए चिल्ड्रन, विदाउट वॉचिंग और विदाउट आई कैन से चीटिंग. ओके, आप देख देख के कॉपी करोगे तो इसको तो कॉपी करना कहेंगे ना, आप खुद से बना लीजिए एक प्लांट. ओके, ड्रॉ प्लांट एंड लेबल इट. इसको क्या करेंगे आप, इसको लेबल कर लेंगे, इसके सारे पार्ट्स के नाम लिख लेंगे. ऑलराइट चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव टू डू, यू अंडरस्टूड ना? ओके, सो डू इट. ठीक है, for revision in your copy. Okay, and I'm correcting your copy in school, as you know, so you can send your copy with your parent. All right children, so draw a plant and label it. This is your homework. Okay children, as revision, we are doing revision now, so do it. Okay children, all right, so that's all for today in EVS. Okay, do it. Thank you children. Take care.